Have you ever come back from the salon and looked at the bill and thought if it was really worth it? Today I'm breaking down what all I get done in a parlor and उसमें से मैं expenses कैसे cut out करती हूँ. And let's see how I can save money without compromising on self-care. So you can write down the services that you generally go for. So I generally go for waxing, haircut, hair spa, hair color. Now let's see what all we can do at home by ourselves so that the expenses are reduced, and honestly all these combined cost a lot. Now you have alternative to all these services, but I'm going to break down which ones are easier to do at home और कुछ चीजें experts के लिए छोड़ना चाहिए. Now for waxing you can definitely use those wax strips that generally come. You can even use an epilator or you can shave, but shaving से थोड़े hard बाल आ सकते हैं जो कि थोड़े चुभते हैं. तो in that case I think epilator is a better option, but then epilator is very painful, so it's better to go for those wax strips, and even that is messy and उतना अच्छा आउटपुट नहीं है वैक्स स्ट्रिप्स का जितना अच्छा पार्लर में मिलता है. और आप अगर खुद करने जाओ यूजिंग वैक्स और उसको गर्म करके आप खुद अगर करने जाओ दैट इज रियली पेनफुल. इवन दैट इज मेसी. कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर पे ध्यान रखना और फिर खुद पे लगाना. टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, कभी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उससे बर्न्स भी आते हैं. So it's better to avoid waxing at home in that case. It's very time consuming, especially जो waxing हम wax गर्म करके use करते हैं. very time consuming, very messy. और क्योंकि गर्म होता है तो खुद पे लगाते टाइम बहुत थिक लेयर लग जाता है बहुत बार, and it's kind of waste of time, a lot of time. And even if you go to a parlor, try to use the roll-on wax. आप बहुत चीज़ें कट डाउन करने वाले हैं अभी, तो आप डेफिनेटली थोड़ा बेटर वैक्स पे मूव कर सकते हैं. सो आई स्टार्टेड यूजिंग द रोल ऑन वैक्स जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू जो चॉकलेट वैक्स या जो शुगर का जो वैक्स आता है. सो ट्राई यूजिंग दैट. सो रोल ऑन वैक्सिंग फुल आर्म्स, legs and underarm. It's mentioned as starts at $9.99. Okay, so if it's chocolate roll-on, it's $999. If it's Rika roll-on, it's $1199. So I generally go for this Rika roll-on, which is around 1200 rupees. But it's worth it because it's really not as painful and बहुत जल्दी हो जाता है, तो it's time saving as well. So I go for this one. Of course आप ये पूरा set खरीद सकते हैं like the wax and the heater, but that costs around 3000 rupees, and then you have to get the strips, get it done yourself. Even that is I think a better option. Manicure and pedicure is something जो कि कोई और करता है तो बहुत अच्छा लगता है, but in order to save money we can definitely do this at home. इसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता. सिंपल प्रोडक्ट्स आते हैं, आप प्रोडक्ट में पैड डुबा के रखिए, थोड़ा मसाज कीजिए, थोड़ा स्क्रब कीजिए, थोड़ा फुट फाइल कीजिए या थोड़ा हैंड को स्क्रब कीजिए और इट्स डन. लाइक इट टेक्स नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ बिट ऑफ एफर्ट, बट ये एक ऐसी चीज है जिसपे आप पैसे बचा सकते हो. नाउ द DIY kits are available for manicure and pedicure and it's generally very easy to use. The only difference is the massage, because they generally put a lot of pressure and you really don't have to put any effort and it's really relaxing. But I think in order to save money, that is something that you can do yourself. So if I check in Urban Company the charges of manicure and pedicure, okay, if I go for the luxe option in Urban Company, a pedicure cost like the starting price for pedicure is $1249, and for manicure it's around $999. So that's the luxury manicure and pedicure. If I go for the classic one, so manicure cost, there's this one option available which is of 459 rupees for manicure, and for pedicure it's 549, so around 1000 rupees. So this can be easily saved. I purchased a mani pedi kit and I'm sure I can use that one product for both my hands and my feet. The price of that, so if I check, it is from O3 Plus Physiologics, and it's ice cream manicure and pedicure set, and the price is 475 rupees. So I'm saving 500 rupees just by doing mani pedi at home.
एंड इट्स नॉट रियली डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी टाइम कंज्यूमिंग. हाँ, एक बार आपको बाल्टी भर के लाना पड़ेगा गर्म पानी का, एंड यू हैव टू वॉश योर फीट, एंड यू नो आप खुद से वाइल करना पड़ेगा, खुद से स्क्रब करना पड़ेगा. बट आई थिंक दिस इज व्हाट द मनी सेव्ड. एंड ये मैं कंपेयर कर रही हूँ जो क्लासिक वर्जन है, जो बेसिक प्रोवाइड हो रहा है. इफ वी गो फॉर लक्स द डिफरेंस इज मच मोर. एंड जब भी आप सैलून जाते हो वो लोग और चीजें ऐड करते रहते हैं ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग डन. कि मैं अगर पेडिक्योर के लिए जाती हूँ तो बोलेंगे आप ये लगाओ, इससे जल्दी हो जाएगा, या इससे स्क्रब बहुत अच्छा होगा. फॉर एग्जाम्पल केमिकल पील लगाओ आप, इससे ज़्यादा बेटर आपका पीलिंग होगा, ज़्यादा क्रैक्स आपके नहीं दिखेंगे. सो ऑफकोर्स आप वो अलग से भी खरीद सकते हो. दे डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन वो आपको पील लगा के देते हैं. वो थोड़ा सा आपको हील पे लगा के छोड़ के रख देते हैं, देन दे स्क्रब इट ऑफ. So that you can do at home, that you can purchase and use it multiple times. Next is nail extension, nail paint. आप घर पे ज़रूर कर सकते हो if you are using the normal nail polish. But the problem is उनको dry होने में बहुत टाइम लगता है. I used to be completely against gel manicures क्योंकि वो बार बार UV rays में हमें हाथ रखना पड़ता है, विच आई रियली डोंट लाइक. आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल विद दैट. बट जो एक बेनिफिट होता है यूजिंग जेल नेल पेंट्स एंड यू नो जेल बेस्ड पॉलिशेस इज दैट वो बहुत जल्दी क्योर होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ड्राई भी होता है और काम बहुत फटाफट हो जाता है. ऑन द अदर हैंड आप अगर नेल एक्सटेंशंस लगाते हो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि दैट इज़ वेरी पेनफुल. वो जब निकलने लगता है एंड इनकेस हमारे पास टाइम नहीं होता उस टाइम सैलून जाने का, इट बिकम्स रियली रियली पेनफुल. सो इट्स बेटर टू अवॉइड नेल एक्सटेंशंस. नेल एक्सटेंशंस जब आप करते हो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है. और अगर आप सिर्फ जेल लगा के उस पर जेल पेंट यूज करते हो, दैट इज अ बिट चीपर दैन अलॉन्ग विद नेल एक्सटेंशंस. तो आप नेल एक्सटेंशंस अवॉइड कर सकते हो एंड यू कैन गेट इट डन डायरेक्टली ऑन योर नेल्स. आप नेल्स को उतना ग्रो कर लो जितना आपको चाहिए लेंथ, एंड गो फॉर जेल पॉलिशेस इफ यू वॉन्ट. बट येस, आपका चॉइस है, आप नेल पॉलिशेस भी लगा सकते हो. फॉर मी रिसेंटली आई स्टार्टेड गोइंग टू सैलून फॉर जेल पेंट्स. और मैंने ये भी सोचा है कि मे बी आई परचेज द होल किट. बट द प्रॉब्लम इज अप्लाइंग द नेल पॉलिशेस. राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे लगाना मेरे लिए आसान रहता है, बट अदर वे अराउंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. तो एक हाथ पे मैं ऑफकोर्स कर सकती हूँ, बट दूसरे हाथ का मुझे एनी विच वे हेल्प चाहिए होगा. तो आई गो फॉर जेल पेंट्स नाउअडेज. I wear a lot of sunscreen before going. I have even checked for those gloves that are available जिसमें सिर्फ nail portion open रहता है, so that the rest of the skin is not affected by UV. So last जब मैं गई थी मैंने जेल नहीं लगवाया था, मैंने बस nail extensions remove करवाए थे, जेल पॉलिश लगवाया था, एंड मैंने 2 नेल्स पे अलग पेंट करवाया था थोड़ा. सो नेल एक्सटेंशन रिमूवल का मुझे चार्ज हुआ था 300 एंड जेल पॉलिश लगवाने का 690, विच इंक्लूड्स जो जेल लगाते हैं वो भी. सो इट्स बेटर कि नेल एक्सटेंशंस मैं ना लगवाऊं. सो इट्स नॉट वेरी प्राइसी, बट हाँ अराउंड 1100 का कॉस्ट आएगा ही आपको. ऑफकोर्स यू कैन बाय द होल किट, यूवी लैम्प, और आप जेल नेल पेंट्स खरीद के अपने पास रख सकते हो. दैट विल बी मच चीपर एंड इट्स डूएबल. बट जो जेल पाउडर लगाना होता है दैट इज अ बिट ट्रिकी एंड इट्स नॉट वेरी कन्वीनियंट. तो इसीलिए आई अवॉइड दैट. द थिंग अबाउट दिस इज कि मेरा अराउंड 3 weeks चल जाता है व्हेन आई गेट इट डन, एंड 1 week मैं काइंड ऑफ रेस्ट देती हूँ. आई डोंट गेट एनीथिंग ऑन माई नेल्स. आई थिंक इट्स वर्थ द प्राइस एंड एफर्ट. आपका बहुत टाइम बचता है, और मुझे आदत है नेल पॉलिश लगाने के बाद बार बार चेक करने का कि सूखा या नहीं. एंड व्हेन वी अप्लाई 2 or 3 layers ऑफ नेल पॉलिश, वो बहुत टैकी रहता है and it takes a lot of time to dry out. अगर मैं कोई अच्छा ब्रांड भी यूज करूँ, but still it takes a lot of time. Next is haircut. Haircut is something जो आप घर पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं कीजिए unless आप बहुत पैसे बचाना चाह रहे हैं इस टाइम पे. अगर आपको पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाना है, देन यू कैन गो फॉर हेयर कट. वो मैंने भी किया हुआ एक टाइम पे. आप वीडियोस यूट्यूब में रेफर कर सकते हो टू कट योर हेयर. 4 पार्टीशन करके बहुत इजीली आप कट कर सकते हो. एंड इट्स नेवर परफेक्ट, बट if you are saving money you can go for that. Otherwise I would suggest you कि आप हेयर कट बाहर से करवाओ, किसी ऐसे से करवाओ जो आप
आपके हेयर पे बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, और आप कोशिश करो कि उसी को बार बार आप बोलो कि आपका हेयर कट करने, क्योंकि उनको आइडिया रहता है कि आप पे कौन सा स्टाइल सूट करता है, या आप कौन सा स्टाइल कर रहे थे, आपको कुछ चेंज करना है तो कौन सा स्टाइल में स्विच करना बेटर रहेगा। ओके, आई थिंक अर्बन कंपनी वालों ने बंद कर दिया है हेयर कट करना, पहले वो करते थे एंड आई थिंक दे यूज्ड टू चार्ज 600 रुपीज़ एट दैट टाइम, जितना मुझे याद है। या मेरे एरिया में शायद नहीं कर रहे होंगे हेयर कट, बट generally the salon that I go to वहाँ पे हेयर कट फॉर फीमेल स्टार्ट एट अराउंड आई थिंक 900 रुपीज़, एंड मैं जनरली बहुत बेसिक करवाती हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं करवाती हूँ, तो वो जनरली 1000 के आसपास मेरा बिल आता है। बट दैट इज समथिंग विच आई डू मे बी वंस इन 6 months, आई डोंट डू इट वेरी रेगुलरली, तो थोड़ा इन्वेस्ट करने पे मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आता है उस पर। तो हेयर कट इज समथिंग विच आई थिंक यू कैन गो टू अ पार्लर एंड गेट इट डन रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज हेयर स्पा। हेयर स्पा इज समथिंग दैट यू कैन डू एट होम डेफिनेटली, मतलब उसके लिए आपको लिटरली नहीं जाना चाहिए टू एनी सैलून, स्पेशली फॉर हेयर स्पा। ऑफकोर्स कुछ चीज़ें जैसे मसाज वगैरह वो करते हैं वो आप खुद भी कर सकते हैं। उनके पास वो जो हेयर स्टीमर होता है आजकल बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, जो नॉर्मल एक शावर कैप की तरह होता है विद एन इलेक्ट्रिक रॉड, वो स्टीमिंग का इफेक्ट देता है, थोड़ा गर्म कर देता है। That you can use, or you can use a hot towel and wrap it around your hair, which is I think is not at all necessary. आप normal hair spa लगा के अगर आप सिर्फ shower cap पहन के भी बैठ जाते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, that's more than enough heat for your scalp. So that is something I believe you can do at home, no doubt about it. For example, आपको dandruff control के ऊपर करना है, या आपको hair shine के लिए करना है, मे बी रफ हो गए हैं hair उसके लिए करना है, उस केस में डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दोज मास्क दैट आर अवेलेबल। आप कोई भी अच्छे ब्रांड का मास्क यूज कर सकते हैं, आपको इवन एम्प्यूल्स मिलते हैं कुछ ब्रांड्स के, मे बी लॉरियल या दूसरे ब्रांड्स के भी, जो आप सीधा लगा सकते हैं अपने स्कैल्प पे। तो आई थिंक दैट इज बेटर दैन गोइंग टू अ सैलून टू गेट इट डन, और उसमें उतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। आप नॉर्मल शावर लीजिए, शैम्पू कीजिए, और आप अपना स्पा का मास्क लगा के उसके ऊपर शावर कैप लगा के आप अपने घर के थोड़े बहुत काम कीजिए, या थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा अगर धूप है बाहर तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठ के अपना काम कर लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। उसके बाद आप वापस एक शावर लीजिए एंड यू आर डन। तो हेयर स्पा ट्रीटमेंट्स जनरली स्टार्ट एट अराउंड 1950, अराउंड 2000 रुपीज से स्टार्ट होता है, बट जनरली 2000 to 3000 के बीच में ही प्राइस दिखा रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज समथिंग वेर यू आर सेविंग अराउंड 2000 रुपीज एटलीस्ट। बट जो हेयर स्ट्रेटनिंग या हेयर जो केराटिन ट्रीटमेंट्स होते हैं या जो स्मूथनिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, इट्स बेटर टू गेट इट डन फ्रॉम अ प्रोफेशनल, क्योंकि आप अकेले खुद वो चीज़ मैनेज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले दे हैव अ लॉट ऑफ केमिकल्स जो आपके हेयर को बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकते हैं अगर करेक्टली नहीं किया गया। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू द प्रोफेशनल्स इन दैट केस। नेक्स्ट इज फेशियल। फेशियल इज समथिंग दैट यू कैन डू एट होम। बहुत किट्स अवेलेबल है ऑनलाइन जो आपको बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं। डिटैनिंग का भी आप खुद कर सकते हो, डिटैनिंग के क्रीम्स आते हैं, आप वो अप्लाई करो, बाकी का फेशियल का प्रोसीजर करो, दैट्स वेरी डूएबल एट होम। हाँ ऑफकोर्स आपको वो एसी में लेट के कोई कट के दे रहा है अच्छे से, वो चीज़ नहीं मिलेगा, बट दैट इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू। आपके पास VLCC, O3, लोटस, इन सब प्रोडक्ट्स के अच्छे किट्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन। आप वो यूज़ करके आप अच्छा फेस मसाज करके आपका फेशियल लाइक इफेक्ट हो जाएगा। आप जो प्रोफेशनल्स के थ्रू जो फेशियल्स होते हैं वो आप मे बी वंस इन 4 और 5 months कीजिए, बाकी हर मंथ आप खुद कीजिए, दैट इज कम्प्लीटली डूएबल। आपको अगर स्टीमिंग चाहिए, वैसे तो स्टीमिंग ज़रूरत नहीं पड़ती है बहुत ज़्यादा, पर आपको करना है तो आप एक स्टीमर पे इन्वेस्ट कीजिए। छोटे वाले स्टीमर्स बहुत सस्ते आते हैं, मे बी 100-150 रुपये में आ जाते हैं। हमें क्योंकि कोविड हुआ था और उस टाइम पे मैंने एक अच्छा स्टीमर लिया था, सो आई यूज़ दैट वन, बट आपको स्टीमर्स बहुत अच्छे रेट्स पे मिल जाएंगे, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फेशियल के किट्स मिलते हैं, आपको अगर ब्लैक हेड्स रिमूव करने हैं, ब्लैक हेड का भी छोटा किट मिलता है। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के आप ब्लैक हेड्स मत निकालिए, आप जस्ट वाइट हेड्स को निकालिए, दैट इज़ मोर देन एनफ, दैट विल गिव यू अ गुड ग्लो, और आपको रेगुलरली सैलून नहीं जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट इट डन। तो अगर मैं चेक करूँ फेशियल का,
If I go for the luxury version of facial on Urban Company, तो जैसे मैं अगर सिग्नेचर फेशियल मैं देख रही हूँ, सो दैट कॉस्ट अराउंड 2500 विच इज़ अ लॉट। और आपको ये VLCC O3+ में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, देयर इज़ वन कैसमेरा ब्राइटनिंग फेशियल विच इज़ अराउंड 3800 रुपीज़। ये 1.5 घंटे का फेशियल है। ऑफकोर्स अच्छा बहुत लगता है जब कोई और करके देता है, सो इट्स बेटर टू स्विच टू दीज किट्स इन ऑर्डर टू सेव मनी। तो यहीं पे आपका अराउंड 3000 रुपीज़ बच रहा है। नेक्स्ट इज आईब्रो थ्रेडिंग या अपर लिप थ्रेडिंग। नाउ आई यूज शेव्स, इसलिए मैंने ऐसे किया है। सो फॉर आईब्रोज, मेरे आईब्रोज बहुत थिक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उतना नहीं ज़रूरत पड़ता है। सो आई यूज दोज रेजर्स दैट कम, उससे काफ़ी हद तक हो जाता है, मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपर लिप्स के लिए भी आई यूज दैट, तो मैं वो रेजर से ही फेस को काइंड ऑफ शेव करती हूँ और उससे थोड़ा ब्राइट हो जाता है फेस। सो दैट्स वाई आई डोंट नीड एनी सैलॉन सर्विसेज फॉर दैट। बट इफ यू आर समवन जिसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू गो टू अ पार्लर टू गेट इट डन रादर देन रिस्किंग इट योरसेल्फ। अगर आप शेव करते हैं दैट्स वेरी कन्वीनियंट। जो इलेक्ट्रिक शेवर्स आते हैं आई डोंट लाइक दोज मच, मैंने ट्राई किया हुआ है, द रिजल्ट्स आर नॉट सेम। तो आई यूज दोज रेजर्स, बट यू शुड नो हाउ टू यूज इट। थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगता है आप थोड़ा कट मार देते हो, ऐसा कुछ कर देते हो, सो यू नीड टू लर्न हाउ टू यूज इट। बट अदरवाइज इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली ऑप्शन। वो जो ब्लेज आते हैं हार्डली 150 रुपए का आता है, 3 रहता है। ये भी मैं थोड़े हाई एंड वाले प्राइस का बोल रही हूँ, इवन 20-30 रुपीज़ में भी आता है। तो आप कोशिश कीजिए थोड़ा अच्छा ब्रांड का आप खरीदिए, जिसमें कि शार्पनेस थोड़ा ज़्यादा है, एंड यू यूज़ इट। आप अगर अच्छे से उसको रखते हैं, अगर स्टेरलाइज करके रखते हैं अच्छे से, तो आप 2-3 बार यूज़ कर सकते हैं। दो इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट 2-3 बार आप एक रेजर को आप अगर यूज भी करते हैं, दैट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा पार्लर। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज हेयर कलर एंड रूट टचअप। नाउ हेयर कलर जो है और जो रूट टचअप है, थोड़ा रिस्की हो सकता है। मैंने खुद से हेयर कलर किया हुआ है। आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट इट्स डूएबल। बट आपको ये तब तक ठीक है जब तक आपको ग्लोबल हेयर कलर करना है। The moment you want to get those highlights, or you want to take 5 strands and do the highlights, उस टाइम पे बहुत गड़बड़ होता है, उसमें टाइम भी बहुत जाता है, पूरा वो इफेक्ट नहीं आता है जो आना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप चूज करो कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सजेशन जो मैं दे सकती हूँ कि आप ग्लोबल हेयर खुद कर लो, एंड जो हाईलाइट्स हैं वो आप बाहर से करवाओ। बट आप जब भी प्रोफेशनल्स के पास जाओगे तो ये बोल सकते हैं कि आपका जो बेस कलर जो आपने ग्लोबल कलर किया है, उसकी वजह से जो एक्सटेंशन का कलर है, जो हेयर एक्सटेंशंस आप करने वाले हो, वो उसका कलर अच्छे से नहीं आएगा, या बहुत सारी चीज़ें वो रीजंस में बता सकते हैं। सो इट्स बेटर टू चेक विद योर चेक विद योर सैलून कि वो चीज़ करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो आप कौन सा ग्लोबल हेयर लगा के आ सकते हो नेक्स्ट टाइम, और ताकि वो हाईलाइट का वो कर दें। तो अदरवाइज दे चार्ज अ लॉट फॉर हेयर कलर एंड हेयर एक्सटेंशन। और मैंने एक बार जो लास्ट टाइम मैंने करवाया था, मेरा अराउंड 15,000 का चार्ज आया था, जिसमें कि वो लोग अपने तरफ से बहुत कुछ ऐड करते हैं कि आप ओलाप्लेक्स भी ऐड कर लीजिए, आप ये भी ऐड कर लीजिए, आप ये वाला सीरम ऐड करवा लीजिए, और उस एक सीरम का वो अराउंड 200, 300, 500 ऐसे चार्जेस ऐड करते रहते हैं। तो बी माइंडफुल, आप क्वेश्चंस पूछिए उनसे कि अच्छा इसका प्राइस कितना रहेगा, आपको नहीं ऐड करना है तो नहीं ऐड। वो बार बार बोलेंगे आपको कि नहीं इससे बेटर रिजल्ट्स आएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली बेटर रिजल्ट्स आएंगे, बट अगर आपके बजट में नहीं, आपके बजट से बाहर जा रहा है, तो बी वेरी क्लियर विद देम कि नहीं ये इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगी। तो हेयर कलर के चार्जेस बहुत हैं। इट्स बेटर कि या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आप जाइए, आप देखिए कि वो कौन कौन से कलर्स यूज कर रहे हैं फॉर ग्लोबल एंड फॉर हाईलाइट्स, और उसमें से आप ग्लोबल वाला आप खुद कर लीजिए अपने तरफ से, जो कि थोड़ा टैकी रहता है। बार बार आपको हेयर पार्टीशन करना पड़ता है, बार बार लगा के, बार बार फॉयल लगाना, और पूरे हेयर के साथ थोड़ा 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 करना पड़ता है, जिसकी वजह से इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टायरिंग। बट हाँ, अगर आपको 15,000 रुपीज़ डेफिनेटली बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पहले मैं यही करती थी। आई थिंक लाइफ में मैंने पहली बार इस तरह से हेयर कलर करवाया है, जो कि इतना कॉस्टली पड़ा है।
एंड उसके बाद मैंने 6 महीने तक हेयर कलर नहीं करवाया है। दिस पर्टिकुलर सर्विस इज समथिंग जो कि बहुत मुझे प्राइसी लगा। तो जिस टाइम वो मुझे कर रहे थे हेयर कलर, मैंने उस टाइम अपने नोट्स में लिख के रखा था कि कौन सा कलर मेरे पे लगाया जा रहा है एज बेस कलर एंड एज हाईलाइट्स। ओके, तो इसमें मुझे जैसे मैंने मेंशन करके रखा है कि मैंने 13 माजी हेयर कलर एज बेस यूज किया था। उसके बाद उसके साथ उन्होंने प्री लाइटनर मिक्स किया था, उसके साथ उन्होंने ओलाप्लेक्स भी मिक्स किया था एंड जो हाइलाइट्स थे वो 4 and 5.26 का मिक्स था। तो वही मैं कोशिश करूंगी, मैं चेक करूंगी कि ये वाला पर्टिकुलर शेड मुझे ऑनलाइन कहीं मिल जाए जो कि मैं यूज़ करके एंड देन आई गो फॉर द हाइलाइट्स, क्योंकि अदरवाइज इट्स वेरी वेरी कॉस्टली। बट हेयर कलर इज समथिंग फॉर विच यू हैव टू गो टू द सैलून, स्पेशली अगर आप थोड़ा हाईलाइट या थोड़ा बालियाज और ये सब करवाना चाह रहे हो तो। अदरवाइज अगर आपको सिंपल हेयर कलर करवाना है सो यू कैन डू इट एट होम। आई यूज टू डू इट एट होम जब मुझे नॉर्मल ग्लोबल कुछ भी कलर में लगाती थी जब, बट दिस टाइम आई वॉन्टेड टू चेक हाउ इट्स डन एंड इफ इट्स रियली वर्थ द प्राइस। It's definitely worth the price, but for someone like me it's way too costly and I wouldn't want to spend that much money again on hair color. तो डेफिनेटली मैं ये सब चेक करके वापस से करूँगी ये सारा एंड लेट्स सी अगर वो हाईलाइट्स सिर्फ करके दे एंड दे डोंट से कि नहीं इस पे ये चीज़ नहीं हो पाएगा जस्ट क्योंकि उनका प्रॉफिट उनका लॉस हो रहा है। बट इफ़ यू हैव द रिसोर्सेज then in that case go to the salon to get it done. अगर आपके पास है 15,000 खर्च करने के लिए then definitely you should go and spend it on good salon, क्योंकि वो अच्छे से करके देंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप रिलैक्स करके वो चीज़ एंजॉय कर सकते हो। बट क्योंकि ये मनी सेविंग का वीडियो है सो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो फॉर दैट, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। जब आपके पास पैसे सेव हो जाएं तो आप हाईलाइट्स करवा लो उसके ऊपर, बट अदरवाइज आई थिंक इट्स बेटर टू अवॉइड गेटिंग हेयर कलर्ड इन सैलून। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आता है थोड़ा बहुत करना, थोड़ा बहुत स्ट्रैंड्स अलग करना आता है, यू कैन डू इट एट होम। जो कैप आता है छेद वाला, प्लीज डोंट यूज इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, उससे अच्छा दिखता भी नहीं है। So it's better to use your foils and take out the strands and do it. If I do it on someone it will be very easy for me, but doing it on yourself it gets a bit tricky. Otherwise I think अभी जो अच्छा alternative है वो है hair extensions. आप हेयर के एक्सटेंशंस खरीद के आप लगा सकते हो बीच बीच एंड इट गिव्स अ वेरी गुड वॉल्यूम एंड कलर भी थोड़ा आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है लगाने का। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग एंड डीटैनिंग। दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली डू इट एट होम। आपको ब्लीचिंग के किट्स मिलते हैं, आपको डीटैनिंग के किट्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने लेटेस्ट डीटैन का खरीदा है इट इज़ फ्रॉम O3+, बहुत अच्छा है। दो उसका टेक्सचर रागा की तरह है, जो रागा का डीटैन पाउच आता है उसकी तरह है उसका जो टेक्सचर है। तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर रियली गुड। जनरली सैलून्स में रागा का यूज़ किया जाता है, बट यू कैन चूज एनी ऑफ देम एंड दे आर वेरी बजट फ्रेंडली। उसको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वो। रादर देन गोइंग टू द सैलून एंड गेटिंग इट डन, वो थोड़ा सा लगाने का 300 रुपये ले लेंगे। You can get the whole thing in maybe 500 rupees or 600 rupees. So it's better to go for detanning cream and apply it yourself. Bleach में आई वुड सजेस्ट कि ब्लीच आप अवॉइड करो। आजकल ब्लीच जनरली कोई यूज़ नहीं करता है, तो ब्लीच आप अवॉइड करो बिकॉज इट बर्न्स द स्किन, आपका स्किन का टेक्सचर खराब होता है। बट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट फॉर द टाइम मेंशन्ड ऑन द मैनुअल। आई थिंक जनरली वो 10 मिनट के लिए ही लगाने बोलते हैं, सो डू दैट एंड डोंट ओवर यूज द एक्टिवेटर। तो आई थिंक इट शुड बी प्रिटी फाइन, बट डीटैनिंग क्रीम इज़ अ बेटर ऑप्शन दैन ब्लीच, क्योंकि डीटैनिंग में आपको बर्न्स नहीं होते हैं। आप बहुत देर तक आपको उस देर तक लगा के आप टेंशन फ्री बैठ सकते हो एंड जो उसका रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। सो जो O3 का मैंने डीटैन फेस पैक खरीदा है दैट इज 789 रुपीज़, 50 ग्राम का आता है, जो कि बहुत है। अभी भी मेरा पूरा का पूरा डब्बा बाकी है। ये मैंने खरीदा था आई थिंक 3 महीने तो आराम से हो गए हैं इसको खरीदे हुए, और ये अभी भी ऑलमोस्ट पूरा ही बचा हुआ है। सो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बॉडी पॉलिशिंग इज ऑल्सो समथिंग जो आप आराम से घर पे कर सकते हो। यू गेट बॉडी पॉलिशिंग टब्स जो स्क्रब होता है या जो ब्लीचिंग का ऑप्शन रहता है
वो आप यूज कर सकते। बॉडी पॉलिशिंग में आपको बेसिकली ब्लीच करना होता है पूरे बॉडी को और फिर आपको स्क्रब करना होता है आफ्टर ब्लीचिंग। तो बहुत इजी प्रोसेस है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप सिंपली ऑनलाइन खरीद सकते हो जो ब्लीचेस अवेलेबल है, थोड़ा बड़ा जो टब होता है वो, एंड वो अप्लाई करके 10-15 मिनट रुकने के बाद यू वॉश इट ऑफ और स्क्रब साथ के साथ आप यूज करते रहो। कोई भी आप स्क्रब यूज कर सकते हो, थोड़ा जेंटल अगर स्क्रब हो तो बेटर होगा एंड इट गिव्स अ फ्लॉलेस टेक्सचर। ओके, सो द एवरेज प्राइस इज बिटवीन 2000 to 3500, बट इवन इफ आई अज्यूम कि 1000 रुपीज है तो भी हम यहाँ पे 1000 रुपीज सेव कर सकते हैं। वॉट आई प्रेफर लीविंग टू द सैलून इज हेयर कट, मे बी फेशियल्स अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट आ रहा है, बट अदरवाइज I can save a lot of money on facials if I do it at home. So the trick isn't to stop pampering yourself, but to choose wisely कि आपको कौन सा service, you know, DIY करना है and which services to outsource. Salons are now an occasional luxury and not a monthly stress anymore. So don't stop pampering yourself. Just be smart about what you want to outsource and what you want to DIY. Tell me in your comments which services you're willing to do at home and how much money you have saved. And let's share our hacks and save together.